Hi guys, so in this video I will be going to tell you about what is subnetting is. Okay, so what is subnetting, and because it's the most important topic and it has get you examination also, and also for your competitive examination it's also very important point of view. So coming on to the point, like netting. So subnetting means dividing a large network. It basically sub means का मतलब क्या होता है? It means कि dividing the large network into smaller network, okay, into small sub network, dividing the larger networks into sub network, okay. And how you could achieve this, like in doing subnetting we can use the two ways. One, like in your question it will be mentioned that in which way you have to perform the subnetting, whether in the classful addressing you have to do the subnetting, or whether in classless addressing you have to perform the subnetting, okay. So these things has been will be mentioned in your questions, and according to the question you have to do the following things. Next point is, before learning all these things, let me give you some briefing about IPv4, because it's also an important point, because without IPv4 there's no subnetting, no classless addressing and nothing. So what is IPv4? As the name suggests that it's an internet protocol, okay, of version 4. Why do we use 4? Because when we write there are four sets, okay. There is like four set of numbers, okay, which are of 8 bits, okay, and separated by dot, राइट। अगर आपने एक IPv4 का एड्रेस देखा होगा लिखा हुआ पीसी में, अपने कंप्यूटर में, अपने फोन में, देन यू हैव सीन कि वो कैसे लिखे होते हैं। लाइक इट हैज बीन रिटन इन लाइक 192.120.12.0 something like this way. So what is this? This is actually your IP address, how it looks. So वही मैं कह रही हूँ कि वर्जन 4 क्या बताता है, वो ये बताता है कि 4 नंबर हैं, ठीक है, 4 नंबर होते हैं, but they are of 8 bits, okay, and 4 parts, okay, 4 part, and each part is of 8 bits, right? So generally वो कितने हो गए? Just do a simple calculation. It's 4 into 8, which is 32 bits, right? And that 32 bit is 2 raised to the power 32 addresses, which is being generated by the IPv4 protocol, and these are this is being given to your PC, laptop, your phones whenever you get connected on the internet, okay. Sorry this, okay, so eventually in 1 byte there is 8 bits, okay. 1 byte there are total 8 bits, okay, like 8 bits, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So if it has 8 bits, then how possible number of outcomes it could be? मतलब कि इस अगर 8 बिट है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे? तो इट्स सिंपल, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे निकलते हैं आपके? जब आपके 3 बिट हुआ करते थे तब लोग कहते थे कि 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो इट मीन्स कि जो 2 रेज़्ड टू द पावर आप 3 करते थे सिंपली। तो यहाँ पे जब आपके 8 बिट हैं तो इट्स 2 रेज़्ड टू पावर 8, एंड ये आपके कितने हो जाएंगे कॉम्बिनेशन? 256। आई एम करेक्ट? 256 combinations आपके total बनेंगे. So in my point of view, this is the most confusing point where each and every student confused, and nobody is going to explain about what is 1 bit, what is 8 bit, and this will genuinely help you in your means upcoming calculations. Now next we are learning about the classful addressing. What is classful addressing? Because I tell you that in subnetting this point you must be known, and this is the important point which every student must learn it, okay. Now in classful addressing, अब आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है क्लासफुल एड्रेसिंग में, वो ये कि हम क्लासफुल एड्रेसिंग करते किसका है। ये अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं हम क्लासफुल एड्रेसिंग करते हैं किसका है, तो अभी मैंने आपको ऊपर क्या पढ़ाया, आईपी, तो हम IP4 का ही करते होंगे, IPv4 का, और किसका ही हम एड्रेसिंग करेंगे, राइट। तो अब जब IPv4 में मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल कितनी बिट्स होती हैं, 32 बिट्स होती हैं, फाइन, इट टोटली कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स। तो अब इन्हीं 32 बिट्स को हम कैसे अपने हिसाब से डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, ओके। अगर ये टोटल पूरा मेरा 32 बिट्स है,
ओके, ये मेरा पूरा टोटल 32 बिट्स है एंड मैंने उसमें से लाइक फर्स्ट पार्ट ऑफ द एड्रेस सपोज ये n मैंने रख लिया, तो ये मेरे कितने बचे 32 माइनस n, राइट, 32 माइनस n बचे। तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं क्या कहती हूँ, इसको मैं कहती हूँ नेटवर्क आईडी। ओके, लेट मी स्क्रॉल अप, नेटवर्क आईडी, राइट। एंड जो मेरा ये वाला पार्ट है इसको मैं कहती हूँ मेरी होस्ट आईडी। ओके, so people will get confused in that what is the network ID and what is the host ID। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि इवेंचुअली जो आपकी नेटवर्क आईडी है, सपोज करो कि network ID is determining that one network, okay, suppose that a person is from UP Ghaziabad, so the thing is being given as a network is UP and 14, so I will detect that yes, this vehicle is from the Ghaziabad and the host ID will be the other number, some numbers of that vehicle. Okay, so UP14 will be tell you that yes, it's from the Ghaziabad, and this host ID will tell you that this is the number, and then you will detect it. Okay, that yes, this is the number of some person. Right. So this is eventually the meaning of the network ID and the host ID. So it means the network ID is same for every vehicle which is in a Ghaziabad. Like UP14 will be same for every vehicle which is in Ghaziabad. Okay, while the host ID will be different. Okay, so now coming back to the classful addressing. So I have mentioned to you that yes, there are 5 addressing like A, B, C, D, and E. So basically, how we have originally divided our space. So this is not important for the examination, but just sake of your information, I'm telling you. In this, the A part, okay, the class A, it covers approximately 50% of the addresses. Okay, means the address, the 2 raised to power 32 addresses, in that addresses the 50% has been given to the A class. Then coming to the B, 25% to class B, then C को हमने दिए 12.25 क्योंकि अब कमी हो रही थी हमारे पास 12.25 एंड बाकी के जो बचे थे D और E को हमने 6.2525 में बांट के छोड़ दिया। ओके, 6.25 6.25, सो इट विल बी इजी फॉर यू। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम जो IPv4 है हमारा, राइट, उस IPv4 को हमने कितने पार्ट्स कैसे लिखते हैं, उसे चार चार के पेयर्स में उसे लिखते हैं अपने IPv4 को, राइट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके लिए जानना जो है वो यही 3 है, बिकॉज जो D एंड E है इसको तो हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज ये हमारे मल्टीकास्टिंग एड्रेस के लिए ये हमारा यूज़ होता है और ये हमारा रिजर्व है फ्यूचर यूज़ के लिए, एंड वो फ्यूचर यूज़ पता नहीं कब आएगा, बट पीपल यूज टू से कि वो ये मल्टीकास्ट के लिए एंड ये हमारा रिजर्व है फॉर फ्यूचर यूज, फाइन। तो मेन आपको यही 3 क्लासेस का देखना है, इन्हीं 3 का ही आता है। तो मैंने आपको बताया कि 4-4 होते हैं, राइट, एंड इन 4 में 8-8 बिट के होते हैं, 4 टुकड़ों में होते हैं एंड वो चारों टुकड़े 8-8 बिट के होते हैं, सिंपल। तो आप इनको अपने मर्जी से 1 2 4 1 2 4 आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता है कि ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट के हैं, फाइन, इट्स क्लियर टिल नाउ हियर। ओके, पर अब ए क्लास में क्या होता है कि हमारा केवल जो आगे का 8 बिट होता है, राइट, ये वाला सा नेटवर्क आईडी देते हैं, मतलब कि नेटवर्क आईडी हमारा बस ये आगे का 8 बिट के होंगे, बाकी के जो इतने हैं ये सारे, ये जितने, ये तुम्हारे होस्ट होंगे। नेटवर्क एक होगा मतलब कि वही शहर एक, UP14, उससे कितने व्हीकल्स कनेक्ट हो सकते हैं, अब ये तुम लोग खुद देख लो कितने हैं, 8 8 24 हैं, तो तुम खुद 2 रेज़ टू पावर 24 कर लो, इतने व्हीकल्स तुम्हारे 2 रेज़ टू पावर 8 वाले से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट, समझ आई बात। अब ऐसे ही बी में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कहते हैं नहीं भाई तुम 2 ले लो, हम उससे थोड़ा और दे देते कि हाँ हो सकता है तुम्हारा लेंथ और बड़ा हो, UP14 एंड समथिंग कुछ और हमने फिक्स कर दिया होगा वहाँ तक का, तो वो तुम्हारा होस्ट आईडी है, सॉरी नेटवर्क आईडी है, मैं बार बार भूल जाती हूँ, एंड ये हमारा होस्ट, फाइन, समझ आई बात। तो ये तुम्हारे कितने होंगे 2 रेज़ टू पावर 16, ये भी 2 रेज़ टू पावर 16। अब बट सी में क्या होता है कि हम आगे के 3 बिट को रिजर्व कर देते हैं कि भाई तुम अब आगे आगे के हमारे 3 बिट्स को बिल्कुल नहीं छेड़ सकते, पीछे वाले से तुम्हें जो करना है वो करो। तो यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 रेज़ टू पावर 8 होता है एंड इट इज टोटली 256। एंड ऑनेस्टली गाइज
जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या जो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं ना, उनका भी क्लास सी में काम चल जाता है। दे डिडंट यूज क्लास बी, क्लास ए, नथिंग। मोस्टली लोग कहते हैं कि क्लास ए आपको रेलवेज में यूज होता है, बट ओके, सो हियर मैं आपको बताती हूँ कि क्लासेस क्या-क्या हैं आपके और प्रीफिक्स क्या-क्या होते हैं, मतलब कि प्रीफिक्स जो आगे के बिट जो कि रिजर्व है, और जो नेटवर्क आईडी वो क्या-क्या है, एंड द रेंज इज लाइक स्टार्टिंग कहाँ से होती है एंड एंडिंग कहाँ तक होती है, एंड दिस विल जेन्युइनली इफ यू लर्न दिस टेबल देन दिस विल जेन्युइनली हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, बिकॉज यहीं से आप पकड़ लेंगे कि अच्छा ये दिया हुआ है तो ये क्लास सी एड्रेसिंग में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे आगे के अपने 3 बिट रिजर्व करने हैं, जो हमारे आगे की 3 चीज़ें हैं उसे हमें रिजर्व करनी है। ठीक है, 24 बिट्स हमें रिजर्व करनी है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो देखो जैसे क्लास ए है, बी है, सी है, डी, ई के तो मैं ओके एनीवे प्रीफिक्स क्या-क्या है इनके, जो कि मैंने बताया था। ए में तुम्हारे कितने बिट रिजर्व होते हैं? 8 बिट रिजर्व होते हैं। इसमें हम बराबर-बराबर बिट रिजर्व करते हैं 16। इसमें हमारे 24। इसमें आगे के नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एनए एनए लिख सकते हैं आप, राइट? एंड अब रेंज बतानी है। तो देखो इसकी रेंज होती है 0 से 127 तक की। अब ये क्या है ये भी मैं बताऊंगी। इसकी 128 से रेंज होती है 192 की। ओके, एंड इसकी होती है 192 से 223 की। ये रेंज बेसिकली जब आप इसको बाइनरी में लिखोगे ना, जैसे कि ये 24 है, तो 24 का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। वैसे इसको इतनी नीड नहीं है। जो आपका डी है वो आपका 224 से चलता है 239 तक।